السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں 19 کراچی انٹرنیشنل بک فیئر میں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ ان کتابوں کو لکھنے والے بھی موجود ہیں. تو آپ کی ملاقات کروائیں گے آج مختلف شخصیات سے. ان سے پوچھیں گے کہ آج جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر کتاب کتنی پڑھی جا رہی ہے اور لوگ اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. ساتھ ہمارے اس پاکستان کے، بلکہ میں کہوں گا بر صغیر کے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے اردو ادب کے دو بہت زبردست شخصیات موجود ہیں، پروفیسر سرار انصاری صاحب اور ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. اور اس بک فیئر میں یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال جو ہے وہ ضرور موجود ہوتے ہیں. کتاب کے ایمبیسڈر ہیں جو. تو آپ کی اجازت تو پہلے پروفیسر صاحب سے کچھ بات کرتے ہیں. بالکل پروفیسر صاحب، یہ جو کاوش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جناب انٹرنیٹ ہے، لوگ جو ہیں موبائل پہ ہیں، اسکرین پر ہیں، اب کتاب کون پڑھے گا؟ اس کے باوجود بک فیئر ہوتے ہیں اور رش بھی ہوتا ہے، تو یہ کچھ سمجھ میں آتی نہیں بات. نہیں، یہ بات ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اگر جسے کہتے ہیں نا کہ برنگ ٹو دا ڈور، تو آپ کسی کے اس طرح لائے کہ دسترس میں اس کی وہ چیز ہو جائے. کیونکہ بعض دفعے ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جیسے بازار میں جاتے ہیں، اردو بازار یا کوئی بھی، تو کسی کتاب کے بارے میں پوچھے وہ کہتے صاحب نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ ایک ہی چھت کے نیچے ہر مذاق اور ہر طرح کے، ہر زاویے کی اور ہر شعبے کی کتاب مل جاتی ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ بک فیئر میں آنا پسند کرتے ہیں. ہر سال آپ دیکھیے کہ 5 لاکھ کے قریب آتے ہیں شائقین کتاب خریدنے کے لیے. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کر کہ ابھی افتتاح بھی نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہزاروں بچے صبح آ گئے کتابیں اپنی تلاش کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ آپ جب کتاب ان تک پہنچائیں گے تو وہ دلچسپی انہیں محسوس ہوگی. لیکن جب آپ اس سے ہٹا لیں گے تو وہ اپنے تفریح کے لیے، اپنے وقت گزاری کے لیے کوئی اور میڈیا جو ہے وہ تلاش کر لیں گے. تو اس لیے بک فیئر بہت ہی کارآمد چیز ہے. اور آپ دیکھیے کہ آج 19 سال ہو گئے ہیں. ہر سال جو ہے نہایت کامیابی سے نہ صرف پاکستان بھر کے پبلشرز آتے ہیں بلکہ دنیا کے کئی اہم ممالک سے یہاں پر کتابیں. اچھا سر، اب میں ذرا انٹرسٹ کی بات کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں. چلے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب اب تو کوئی کتاب ہی نہیں پڑھ رہا، اب تو جو ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اسکرین کا دور ہے، تو اب کیا کتابوں کی بات کر رہے ہو بھائی؟ اب تو اگر کتاب پڑھنی بھی ہوگی تو ہم وہ کمپیوٹر پہ پڑھ لیں گے، لیپ ٹاپ پہ پڑھ لیں گے، موبائل پہ پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اچھا، میں خود اپنا اسٹال لگاتی ہوں آرٹس کونسل کا یہاں پر، اور اس سے پہلے انجمن ترقی اردو کا، اور خود موجود ہوتی ہوں. تو بہت خریدار آتے ہیں، ہر عمر کے بچے بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں اور بڑے بھی آتے ہیں. بس مسئلہ کتاب کی دستیابی کا. اس کے علاوہ جوش ملی آبادی لائبریری آرٹس کونسل میں بنائی ہے. آپ کسی دن صبح کو 10 بجے آ جائیں اور رات کو 8 بجے تک کسی وقت بھی آ جائیں. وہاں بہت سارے نوجوان اور بزرگ بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. سارا دن وہ لائبریری جو ہے اس میں لوگوں کی موجودگی ہوتی ہے اور وہ کتابیں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے، کتابیں کون دے رہا ہے ان کے ہاتھ میں. میں کھڑی ہوتی ہوں تو میں آتے ہیں تو میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں
कौन सी किताबें पढ़नी है, उनको सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों के लिए कि ये किताबें हैं, बड़ों के लिए ये हैं। जब लाहौर में जाके बुक फेयर में खड़ी होती थी तो रिसर्च के जो स्टूडेंट्स थे वो आ जाते थे, अब वो कहते थे कि आप किताबें बताएं, हम इस टॉपिक पर रिसर्च करें। तो होना ये चाहिए कि लाइब्रेरी में सिर्फ लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी साइंस का जो टेक्निकल काम जानता है वो तो होना चाहिए, लेकिन एक अदीब और शायर वहाँ मौजूद हो तो बहुत लोग आएंगे, क्योंकि नौजवान ढूंढते फिरते हैं कि किससे इस्तिफादा करें। सर अंसारी साहब के पास बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से बच्चे जाते हैं। हम जब नौजवान थे हम जाके कमर जमील साहब के पास बैठा करते थे, ज़मीर अली साहब के पास बैठा करते थे, डॉक्टर असलम फ़रूख़ी मेरे उस्ताद जब तक ज़िंदा रहे उनके पास जाते थे, इनके पास जाते थे। इनको मैंने अंजुमन में इसीलिए बैठाए रखा था कि जो शायर व अदीब आए, वो बच्चे नौजवान आए, वो इनसे मिलें और सीख सकें। तो एक तो ये है कि लाइब्रेरी बनानी चाहिए, उसमें ज़ाहिर है कि टेक्निकल स्टाफ लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए, लेकिन एक अदीब और शायर या उस्ताद जो अदब का है उसको वहाँ बैठाना चाहिए, जिसकी वजह से पढ़ने वाले और सीखने वाले वहाँ आएंगे, तब हमारी किताबों की और इल्म की तरोीज होगी। कहा जाता था कि इल्म किताबों से आता है और सोहबत से आता है। पहले कहते थे ये तालीम याफ्ता भी है और ये सोहबत याफ्ता भी है, तो ऐसी सोहबतें चाहिए होती है। ये आप अशार भी आज के लिए ख़ास तौर पे आपने लिखे, और जब ये इफ्तिताई तकरीब हुई तो मैंने भी ये अशार पढ़े आपके। तो आप ही पढ़ नहीं, आप ही ज़्यादा खूबसूरत पढ़ सकते हैं। हर आस किताबें हैं, हर ख्वाब किताबें हैं, तहजीब के वर्से में असबाब किताबें हैं। पूछोगे अगर मुझसे क्या मेरा असासा है, खुश हो के बता दूंगी नायाब किताबें हैं। जचता है हर एक पर जो वो इल्म का जेवर है, दानिश से सजे सारे अब्वाब किताबें। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, एक्सीलेंट। सर ये फरमाएं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है। गवर्नमेंट स्कूल का तो अब कॉन्सेप्ट भी एक तरह से ख़त्म हो गया, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, अब वो बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके सबसे कम नंबर उर्दू में आ रहे हैं। जी हाँ। और बच्चे कह रहे हैं भाई अंग्रेज़ी आसान है, हर वर्ड जो अलग अलग लिखा हुआ है, उर्दू को में मिलाना लफ्ज़ों को मुश्किल काम है। तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? ये असल में कुछ असातिज़ा और घर के माहौल पर भी बहुत मुनासिर है कि वो किस तरह से पढ़ाते और सिखाते हैं, क्योंकि अब आखिर हम भी बच्चे से कभी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम लफ्ज़ नहीं जोड़ सकते। तो ये है कि जब मशक़ कराई जाएगी और उनको जो है वो लिखने का जो है, मेरे वालिद कहा करते हैं कि लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो पहले जब आप बताएंगे नहीं कि साहब हमने चीनी और जापानी और सोमालिया वगैरह की तालिब इल्मों को भी पढ़ाया है, उनकी अपना रस्मुल ख़त बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जब हम अपना रस्मुल ख़त बताते हैं तो वो इतने उम्दा तरीक़े से लिखते हैं कि हमसे बेहतर उनका ख़त नज़र आएगा। आप किसी भी उर्दू जो इसने यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा हमारी, उससे आप लिखवा के देखिए, तो वो जब तवज्जो ही नहीं है उनकी तरफ तालिब इल्मों की, हर एक जो है बॉल पेन से लिखता है। पहले जो है वो जी निब और जेड निब अंग्रेज़ी के लिए और उर्दू के लिए इस्तेमाल होती थी जी। तो ये सब कल्चर एकदम हमने खुद ही ख़त्म किया है। तो बच्चे जो हैं वो अपने आप तो नहीं गुरु कर सकते, उनके नशो नुमा खुद ब खुद नहीं हो सकती। दरसी किताबों के हवाले से फरमाएं। मुझे खुद भी महसूस होता है, मैंने क्लास 8 की, क्लास 9 की, क्लास 7 की किताबें पढ़ी, मुझे भी फील हुआ कि मुश्किल है। मसद मेरे जैसे बंदे को भी थोड़ा संभल के पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद ये आसान अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, जब आगे बंदा बढ़े मैट्रिक के बाद तो थोड़ा सा मुश्किल कर दें। नहीं, मैं खुद समझता हूँ। आप देखिए लेडी बर्ड सीरीज़ जो है, हाँ, वो एक सिंगल वर्ड से शुरू करके और फिर आखिर तक कितने ही उसमें चीज़ें बढ़ाते जाते हैं। तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि अब जैसे ताजवर नजीब आबादी ने मुख्तलिफ तरह की किताबें, मसलन फितरत पर जो है नज़में वो अलग थी, दरिया पे अलग है, पहाड़ों पे अलग है, आसान उर्दू इस्तेमाल कीजिए, आसान उर्दू इस्तेमाल कीजिए, तो ये ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन अगर ये कहेंगे कि
نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کی زلفیں جس پہ بازو پر پریشاں ہو گئی، تیری زلفیں جس کی بازو پر پریشاں ہو گئی، یہ 8 کلاس کا یا 10ویں کلاس کا بھی بچہ نہیں سمجھ اور سکتا. اتنے مشکل الفاظ جو ہم روزمرہ زندگی میں اب استعمال بھی نہیں کرتے ہیں وہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے میں نے خود پڑھے سر. اور میں بہت حیران ہوا کلاس 8 کی، کلاس 9 کی، کلاس 7 کی کتابوں کو پڑھ کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے کہ اتنی مشکل اردو پڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آسان اردو ہونی چاہیے. نثر میں بھی آپ سر سید احمد خان ہیں اور ڈپٹی نذیر احمد ہیں، ان کی کتابیں جو ہے ان سے شروع کر کے پھر جدید دور تک آئیں. میں اگر آپ لوگ اجازت ہو تو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہم ایک پروگرام کریں گے، وہ کتابیں لے کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کتابیں پڑھیں گے، میں خود آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو شاید آپ فرمائیں اس حوالے سے. اب تو الفابیٹ فونیٹکس سے پڑھائے جاتے ہیں، تو اردو میں بھی یہی ہونا چاہیے. آ با پا تا ساؤنڈ سے، فونیٹکس سے پڑھانا چاہیے. پھر اب کمپیوٹر آ گیا، اب تو قلم سے زیادہ کمپیوٹر پہ لکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ لکھ رہے ہیں. تو ہجے میں تبدیلی تو آئی ہے کہ اب 2 حروف ملاتے ہیں، یعنی 4 حروف کو یا 3 حروف کو، 3 حروف جہاں بہت مجبوری ہے وہاں ملاتے ہیں، ورنہ 2 حروف ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کچھ آسانیاں ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کی تربیت نہیں ہے. کچھ کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جس میں جدید طرز سے، جیسے باہر کے ملکوں میں جو لوگ اردو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو امریکہ اور یورپ میں بھی بچوں کو آن لائن بھی ٹیوشن دے رہے ہیں، وہ آسان اردو کر کے پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے کورس کو ریوائز ہونا چاہیے اور اس کو پھر جدید دور کے مطابق ہونا چاہیے. ابھی تک ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ 4 حروف نہیں ملانا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 2 اور 3 تک. اچھا، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ بھائی آپ پڑھیں، بس چاہے آپ کسی بھی زبان میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، کسی زبان میں پڑھیں، وہ کتاب پڑھیں؟ دیکھیے وہ اسٹیج آگے آتی ہے. اچھا. پہلے تو بچے کو جب وہ چھوٹا ہی سا ہے نا، تو اسے گھر میں کتاب پڑھا دینی چاہیے. جو بچہ بچپن سے پڑھنے کا عادی ہو جائے گا وہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا. اور پھر لینگویج نو میٹر، لینگویج نو میٹر. جب ہیبٹ ہو جائے گی نا کتاب پڑھنے کی، میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بچپن میں پڑھنے کو دے دیا گیا، تو میں اردو میں پہلے پڑھتی تھی، پھر میں انگریزی میں پڑھنے لگی. پھر جو دنیا کا دستیاب ہوا، ایک وقت آیا کہ میں گھر میں قید تھی اور میری اردو اور انگریزی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، بنگلہ دیش ہوا، تو میں نے بنگالی پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جس کو پڑھنے کی عادت ہوگی نا وہ پھر پڑھتا رہے گا. ریڈنگ ہیبٹ بڑھتی ہے جب ریڈنگ فاسٹ ہو، اگر اور فاسٹ بچپن سے پڑھنے سے ہوتی ہے. اچھا، جیسے میں اکثر پروگراموں پہ جاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ اسکرین پہ جو سب کچھ آتا ہے نا تو وہ اسٹوری پوری آ جاتی ہے. ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں نا، تو اس سے آگے کا کیا ہے وہ ہم نہیں سوچ پاتے. کتاب میں افسانہ پڑھتے ہیں تو وہ ویژولائزیشن پاور ہماری بڑھتی ہے. ہم وہ کہانی بناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جناب وہ کسی گاؤں کے بارے میں لکھا ہے تو وہ گاؤں کیسا ہوگا، تو ہماری وہ صلاحیت بڑھتی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. اشکال جو ہیں وہ آتے ہیں ذہن میں، بناتا ہے انسان کہ بھائی اڑن کھٹیلا ہے تو کیا ہوگا، اور قالین ہے تو کیا ہوگا، اور بادشاہ ہے تو اب جیسے کیا. مثال کے طور پہ منو سلوا، لوگوں سے پوچھے کہ منو سلوا کیا کیسے ہوگا، تو بہت سے میں نے بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی منو سلوا کا مطلب یہ ہے کہ پیزا بنا ہوا اترتا ہوگا ڈائریکٹ نیچے زمین کے اوپر. ٹھیک ہے، سوچتے ہیں جدید دور میں استاد کا ہونا ضروری ہے کہ وہ بتائے سلوا کیا ہے اور منو سلوا کیا چیز ہے. میں نے کہا نا کہ گھر کا ماحول اور اساتذہ یہ سب سے زیادہ جو ہے ذمہ دار ہے اس بات کے کہ اگر بچے کتاب سے اور حروف سے اور عبارتوں سے دور ہیں تو ان کا زیادہ قصور ہے اس میں. ہم اپنے یعنی بتائیں کہ بچپن میں جو ہے وہ تعلیمی تاش کھیلا کرتے تھے، اس سے حروف بناتے تھے. پھر اسی طرح سے بیت بازی گھر میں ہی ہوا کرتی تھی. کھانا کھانے کے بعد رات کے جو ہے وہ کتاب باری باری سب پڑھتے تھے، بچے بھی پڑھتے تھے. اگر تلفظ کی کوئی غلطی ہوتی، معنی سمجھ میں نہیں آتے تو بزرگ وہیں بتا دیتے تھے کہ یہ ہے. اس طرح سے تربیت ہوتی ہے، جیسے ایک پودا دھیرے دھیرے جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، ایک دم درخت نہیں بنتا ہے وہ. تو اسی طرح طالب علموں کو اور بچوں کو بھی اگر رفتہ رفتہ آپ بتائیں گے تو وہ آپ پڑھنے کا بچوں کو ٹائم نہیں ہے.
बच्चों के पास टाइम नहीं बच्चे के लिए है? बहुत टाइम है? है। जब बच्चा छोटा होता है ना, सारी माँ बाप की तवज्जो चाहता है। अच्छा। उसका कोई और नहीं होता है उस वक्त। वो पूरी, और जो शख्सियत बननी होती है 5 बरस की, बिहेवियर साइंस ये कहती है कि जो शख्सियत है 5 बरस की होती है। फिर अच्छा। बच्चा वो करता है जो वालदैन करते हैं। आप अगर घर में आप वालदैन पढ़ते हैं किताब, तो बच्चा भी उठा के किताब पढ़ेगा। अच्छा अब वालदैन खुद नहीं पढ़ रहे हैं, वालदैन बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, कहानियाँ सुनाने से सिलसिला अच्छा, एक शुरू तो होता मैंने है। कहा इमेजिनेशन पावर, और क्या बेनिफिट है किताब के देखिए किताब सेफ, पढ़ने मेरे ख्याल से जो लाशऊर में जो चीज़ें सेफ हो जाती हैं वो किताब से ज़्यादा होती हैं। किताब से ज़ख़ीरा अल्फाज, हाँ। ज़ख़ीरा अच्छा, अल्फाज जितने बढ़ेंगे उतनी आपकी सोच भी बढ़ेगी, ये भी ध्यान में रखें। वो तो जो आपकी कॉन्क्रीट जो सोच बनाते हैं वो लफ्ज़ों से बनाते जी। हैं, वरना आप सोच ही नहीं सकते। आप सोचते ही अल्फाज में हैं। और इमेजिनेशन तो बहुत ज़रूरी है। यानी जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब हैं हाँ। वो लोग हैं जो जिनके पास इमेजिनेटिव पावर हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। यानी क्या होने वाला, आप एक तकरीब करने जा रहे हैं या एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो वो पूरा प्रोग्राम पहले आपके इमेजिनेशन में आएगा, बिल्कुल। उसके मुताबिक आप तरतीब देंगे। बिल्कुल। तो जब आप इमेजिनेटिव पावर ही डेवलप नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो वो फिर तो महदूद हो जाएगा ना। अच्छा, बहुत दिमाग। ज़बरदस्त आपने बात, और ये ये तो अल्फाज भी क्या है, अल्फाज भी तो तस्वीर है ना। अब किताब पे जब अगर गलत तस्वीर आ जाती है, हिज्जे हम हर एक की रटते तो नहीं है, लेकिन अगर गलत तस्वीर आ जाती है किसी हिज्जे की, हिज्जे अगर जीम से ना लिखा हो, हाँ। तो हम फौरन चौंक जाएंगे, अरे ये क्या है। तो ये हमारे जो दिमाग में और जो हमारे लाशऊर में सब जमा हो रहा है, वो किताबों से जमा हो रहा है। इस सिलसिले में इनका खालिदा हुसैन का बड़ा अच्छा एक फ़िक्रा है। उनके नावल कागज़ी घाट में वो लिखती हैं कि क्या दोस्त और किताबें तकदीर के वो सिपाही हैं जो हमें घेर घार के किसी समत ले जाते हैं। तो जो हमें गाइडेंस मिलती है ना, वो किताबों से और दोस्तों से ही मिलती है। ठीक है। इब्तिदा में वालिदैन को चाहिए कि हमारी शख्सियत में वो चीज़ें डाल दें जिनका मुस्तकबिल में ज़रूरत है। जो माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में किताबें थमा देते हैं ना, उनका बच्चा जहनी मरीज़ नहीं बनेगा। उसको वो उस तन्हाई कभी नहीं सताएगी। यानी वो जो है मोबाइल से सोशल मीडिया दूर करें। और आप देखें अभी बहुत से मुल्कों में बहुत बुरा समझा जाता है कि सोशल मीडिया में अर्ली एज में जा रहे हैं। बताऊं कि जब मेरे सारे घर वाले और रिश्तेदार बहुत सारे फिल्में देखने जाते थे, मुझे एक किताब दे जाते थे और मैं प्रेफर करती थी। मैं वो किताब लेके इतनी महव हो जाती थी, मुझे फिल्में फिर ये लगने लगी, स्लो लगने लगी। अभी तक मैं ड्रामे नहीं देख पाती, मुझे किताब फास्ट लगती है। उसके साथ मेरा सर बस आखिर में सर आपका कोई शेर हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक कोई पहुँचे। सर आपकी ज़बानी। अपने खून से जो हम एक शम्मा जलाए हुए हैं, अपने खून से जो हम एक शम्मा जलाए हुए हैं, शब परस्तों पे क़यामत भी तो ढाए हुए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपका साया जो है वो सलामत रखे, क्योंकि आप लोगों की मौजूदगी से किताब जो है लोग समझ रहे हैं। आप लोग ख़ुद एक किताब हैं, आपको देख के किताब याद आती है। और दूसरी बात ये है कि इस्लाह की ज़रूरत है बच्चों को, नौजवानों को, कि वो उनके पास उस्ताद हो जिनसे वो सीख सकें, आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर राकेश मुतियानी मौजूद हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग के। डॉक्टर साहब, किताबों की जगह है, मेला लगा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे भी शौक़ हुआ अच्छा। कि किताबों का मेला लगा हुआ है। वैसे तो हर मेले में जाते हैं, क्यों ना हम किताबों के मेलों का रुख करें, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं दिन ब दिन लोग जो है ना किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हम किताबों के पास जाएं, हम भी लोगों को बोलें कि हम भी किताबों के पास गए हैं। तो कराची वाले आप भी उठो, आपके लिए ही ये मेला लगाए, तो आप भी आएँ, किताबों के स्टॉल देखें। तो आज आपने देखा कि हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब ने इसका ओपनिंग सेरेमनी की है, हम सब यहाँ पे हैं। तो अच्छा, मुझे एक बात फरमाएं कि कराची में हम ये देखते हैं ज़्यादातर, बल्कि पूरे सिंध की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मायूसी पाई जाती है। मतलब एक अवामी तासुर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डिलीवर नहीं कर रही सूबे के लिए। देखें, आपका जो क्वेश्चन है उससे मैं टोटली एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स लीडरशिप है वो अवाम के दरमियान है। वो अवाम के काम करते हैं, छोटे छोटे काम से लेके बड़े बड़े काम तक। मिसाल के तौर पे? और
मतलब मिसाल के तौर पर जो गमी खुशी है उसमें भी पीपल्स पार्टी होती है, गली की मोहल्लों के जो ढकने होते हैं, पानी होता है, सीवरेज सिस्टम होता है, रोड होता है, सोलर लाइट्स होती हैं, स्कूल होते हैं, हेल्थ सेक्टर, ये सारे बेसिक जो चीज़ें हैं वो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो उसको हल करती है। बदकिस्मती हमारी क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसकी पब्लिसिटी नहीं होती, उसको मीडिया कवरेज नहीं देती। जिस तरह से आप देखें पंजाब सर, अभी में तो सर आपके पास बड़ा बजट है सर, आप तो खुद अपने इश्तहार बनाते हैं और वो हर जगह चलते हैं, क्या मसला है इसमें प्रमोशन का सर? या तो आप सही उसको बता नहीं पा रहे, या खुद डिलीवर नहीं कर पा रहे सही तरह से। कोई भी आपके मिनिस्टर हैं कहीं भी बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सारे मीडिया लाइव दिखाता है। कौन सी जगह है जहाँ पे आपको रोका जा रहा है बताने से कि आपने क्या क्या काविशें की हैं? नहीं, रोकता कोई नहीं है, हाँ। लेकिन हमारी जो मीडिया है वो तो टोटली दिखा रही है, लेकिन जो मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके जो चैनल हैं वो बदकिस्मती से नहीं, आपके वहीं पास तो वहीं आपके स्टार चलते हैं, वहीं पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वहीं पर जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहीं पे रात शाम 7 से लेकर रात 12 बजे के टीवी शोज़ में आपके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, तो आपके पास सारे प्लेटफॉर्म है बताने के लिए। तो ये थोड़ा सा आप ये कहें कि शायद आप खुद जो है, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो लीडर्स हैं, वो शायद सही वो खुद नहीं डिलीवर कर पा रहे उस मैसेज को या उन कामों को जो आपने किए हैं। देखें रोज़म भाई, आप देखें कि हम डिलीवर करते हैं, हाँ। और उसके नतीजे में या आप ये आप देखें- कहें कि आप देखें- या आप ये कहें कि हम इतने मसरूफ रहते हैं आवाम की खिदमत करने में कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मीडिया वाके बताएं। नहीं, हमारी मीडिया काम कर रही है, हमारी खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल बना हुआ है, सोशल मीडिया ठीक है, है। डिजिटल मीडिया है, वो दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिलीवरी, हमारा जो फोकस होता है वो होता है सर्विस फॉर द पीपल। और इसी वजह से आप देखें फोर्थ टाइम हम गवर्नमेंट कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट पे, तो क्योंकि लोग हमें वोट देते हैं। वोट क्यों देते हैं? हम डिलीवर करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। आप देखें हेल्थ सेक्टर हमारा देखें, हम दावा से कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में आते हैं इलाज कराने के लिए। कराची में आप देखें NICVD देखें, SIUT देखें, इंडस हॉस्पिटल देखें, साइबर नाइफ जो एक वाहिद मिशन है कैंसर की पूरे पाकिस्तान में, सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तावन से हुए। और आप देखें ट्रॉमा सेंटर, और आप एम्बुलेंसेस देखें, इतने बड़े फैक्टर। एक मैं मिसाल आपको देखूं, एक गरीब आदमी अल्लाह न करे उसको हार्ट अटैक होता है, डायरेक्ट जाता है NICD में। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में 12 लाख रुपए का खर्चा आता है, NICD में फ्री ऑफ कास्ट। कितनी बड़ी नेमत है। हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन है। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा है कि हमें लोगों के दरमियान में रहना है, लोगों के जो भी तकलीफ़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको हल करना है। हमें झूठ अच्छा, की ये फरमाइए सियासत नहीं करनी है। माइनॉरिटी मुतमईन है आपसे, आप खुद माइनॉरिटी के लीडर हैं। बिल्कुल मनाटी। वैसे मुझे तो ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता माइनॉरिटी, खैर लेकिन चलें। नहीं, मनाटी देखो हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम हैं तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में तो हैं ही है ना। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप देखें, हम दिवाली, होली, हम जितने भी फेस्टिवल्स है, हम खुले आज़ादी के साथ अपनी फैमिली के साथ, और इतने जो आप जैसे भाई हैं वो भी आप आते हैं होली में, हमें रंग लगाते हैं, पटाखे जलाते हैं। इतनी आज़ादी मेरे ख्याल में इंडिया में भी नहीं है। मैं तो बार बार आपके चैनल में कहता हूँ कि मोदी को कहता हूँ कि आप देखें पाकिस्तान में जितने माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिले हुए हैं, आप भी वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई और कश्मीरी भाई को वही हुकूक दें जो यहाँ पे देखें। अभी भी मैं माइनॉरिटी का हूँ, लेकिन आपने तो मुझे वही रिप्रेजेंटेशन दी है ना जो दूसरों को दी है। तो इससे बढ़कर आज़ादी हम क्या कह सकते हैं? हाँ, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, वो तो घर में भी होते हैं, मियाँ बीवी भी लड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जो एक फोर्स कन्वर्जन का जो इश्यूज है उस पर हमारे को तशवीश है। और दूसरा जो अभी लॉ एंड आर्डर जो किडनैपिंग हुई है उस पर भी अभी अल्लाह का बड़ा शुक्र है सिंध गवर्नमेंट ने और चेयरमैन साहब ने ज़्यादा उस पर नोटिस लिया, उसको हल किया। लोगों का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। मैं एक कहता हूँ कि एक फैक्टर है, नफ़रत की ऐनक जो है ना वो उतारनी चाहिए पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी अभी आप देखें इस दौरान एक वाहिद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जो आवाम की बात करती है, आवाम की खिदमत की बात करती है। सर, बहुत बाकी तो कोई जेल से निकलने के लिए बात कर रहा है, कोई कुर्सी हासिल करने के लिए बात बहुत करता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
प्रेसिडेंट कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सहाफ़ी हैं, ज़बरदस्त एंकर हैं, उसके अलावा FIR अपना प्रोग्राम करते थे। कैसे फ़हीम भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए खैरियत से जाफ़र? सर आप ये फरमाएं कि किताबों की जगह है और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए, किताब जो है वो मेरी भी बेहतरीन साथी है। जिस तरह से आपकी बेहतरीन साथी है, इसी तरह से मेरी भी बेहतरीन साथी है। कभी आप मेरे घर पे विज़िट करें, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किताबों से एक मेरा दिली रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है। रूहानी मैं इसलिए भी कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे किताबें पढ़ने के, और हमें ये भी जो शौक़ आया वो अपने वालिद साहब से विरसे में मिला, और उन्हीं की वजह से आज मेरे पास एक बहुत अच्छी और बड़ी लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी का आगाज़ भी उन्हीं के हाथों हुआ कि जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, और उन दिनों रिज़ल्ट बहुत महीनों के बाद आया करते थे। आपको याद होगा 7-7 8-8 महीने रिज़ल्ट नहीं आते थे 80s में। तो उन्होंने मुझे एक पूरी लाइब्रेरी ख़रीद के दे दी थी, और मैं उस लाइब्रेरी को चलाता था और वहाँ बैठ के सारे दिन किताबें पढ़ता था। बाद में वो लाइब्रेरी मेरे घर भी शिफ्ट हो गई। तो इसलिए ज़ाहिर है ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ मेरा होना तो एक तरह से लाजिम है। और ये कुतुब मेला माशाल्लाह से 19 साल का हो गया, तो एक 19 साल के लड़के से मिलना वैसे भी एक अच्छा लगता है कि उससे नई बातें सीखी जाए। अच्छा फ़हीम भाई, ये फरमाएं कि जो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि जो लोग बुक लवर्स हैं उनकी माशरे पे बड़ी ज़बरदस्त नज़र होती है, और वो देख रहे होते हैं कि जनाब इस वक्त क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है एक मायूसी पाई जाती है, नाउमीदी है, और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त लोगों के जहनों में क्या ज़्यादा बात है? देखिए, मायूसी या जो भी एक इस वक्त वो है, वो सब इस वजह से है, नाउमीदी के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों के जहनों के ऊपर इस तरह का असर डाला है कि वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं। और उसमें कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो बेसिकली सियासतदानों की भी है, हुकूमत की भी है, कि वो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड नहीं कर सकी जो होनी चाहिए थी सोसाइटी के पास। इस वजह से जो है आज ये थोड़ी सी हमें फ़िज़ा नज़र आ रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आप ऐसे किसी माहौल में हैं जहाँ आप मायूसी या नाउमीदी का शिकार हो रहे हैं, तो किताब पढ़िए। अच्छा, ये जिस तरह के इवेंट्स होते हैं, आर्ट्स काउंसिल में इवेंट्स हुए, यहाँ पे इवेंट्स हुए, मुख्तलिफ होटल्स में होते हैं, हम भी करवाते हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स जो एक्टिविटीज़ होती है, फ्री एंट्री होती है। एक्सपो कराची में अभी पिछले दिनों आइडियाज़ जैसे हुई, और इतनी एक्सपोज होती है कि हर वक्त एक्सपो हो रही होती है, एवरी वीकेंड पे होती है। क्योंकि कराची में कुछ चीज़ें घूमने फिरने की नहीं है, तो मुझे तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त रिक्रिएशन एक्टिविटी भी है कि आप कम से कम स्क्रीन के सामने से उठें और आप जो हैं वो इन जगहों पे आएँ। तो ये कुछ थोड़ी सी वाइब्स पैदा करती हैं आपके अंदर कुछ? बिल्कुल, देखें ना, ये जो आप जिन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ये कराची की शनाख्त भी है और कराची की शान भी बन चुकी है। जब लोग अपने घरों से निकलकर ऐसे इवेंट्स में पहुंचते हैं तो वो बेसिकली उससे ख़ुद को लिंक करते हैं, और जब वो वहाँ से अच्छी यादें समेट कर लेकर जाते हैं, तो अगर उनके अंदर कोई मायूसी, कोई नाउमीदी है, तो वो ख़त्म भी होती है। तो एक अच्छा मैसेज होता है जो सोसाइटी को जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ऐसे इवेंट्स हों, उनमें कराची के लोगों को, और सिर्फ अब तो कराची से बाहर के लोग भी जो कराची बहुत आने लगे, तो उनको आकर ऐसे इवेंट्स में शामिल होना चाहिए। किताब जो आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ सिर्फ किताब नहीं मिलती खाली, आपको वो किताब लिखने वाले मुख्तलिफ वक्तों में बहुत अच्छे अच्छे लिखारी भी यहाँ मिलते हैं। जब उन लिखारी से आप मिलते हैं तो आपके ऊपर और ज़्यादा अच्छा होता है, असर डालते हैं वो। अच्छा, मैं तो फ़लाँ शख्स से मिला था, मैं तो फ़लाँ शख्स से मिला था, मैं फ़लाँ शायर से या शायरा से मिला था। तो एक अच्छा आपकी मेमोरीज़ जो है ना वो बिल्ड होती हैं, बनती हैं, और वो फिर हमेशा आपको याद रहती हैं। तो ऐसे इवेंट्स में जाना हमेशा फ़ायदेमंद भी होता है और आपके ऊपर अच्छा असर। अच्छा, ये फरमाएं कि एक कराची का बड़ा मसला, मैं इसलिए आपसे सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम जो है एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि वेव्स आती हैं। कभी ये बहुत पीक पे चला जाता है, कभी बैठ जाता है। हम जैसे लोग शोर बचाते हैं तो कुछ लोग पकड़ लेते हैं, फिर वो 2-3 महीने बाद छूट जाते हैं, तो फिर वो ऊपर चला जाता है। फिर हमने देखा कि अब गार्ड्स बहुत ज़्यादा कराची में रखे जा रहे हैं, तो वो इलाके, मैं कहूँगा बल्कि अमीर इलाके जो गार्ड्स रख सकते हैं कि हर दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ है, हर घर के बाहर खड़ा हुआ है, वहाँ स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहा। क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल को भी पता है यार, मैं किसी का मोबाइल छीन रहा हूँ तो पीछे से गोली से मुझे भी आगे लग सकती है। तो वैसे ही कराची का गरीब मुश्किल में था, उसके पास पानी नहीं आ रहा था, बिजली के इशूज़ हैं, गैस के इशूज़ हैं, सड़कों के इशूज़ हैं, ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ उसके मौजूद हैं। तो और लुट भी वही रहा है, गरीब ही लुट रहा है। तो अभी स्ट्रीट क्राइम को किस जगह पे देखते हैं आप? देखें, ये बदनसीबी है मेरे शहर की कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जो है, जो अब एक क्राइम की दुनिया का ना सबसे आसान तरीन क्राइम है, और ये अपने इस वक्त जो है वो पीक के ऊपर है।
अच्छा, ये चूँकि 60 सेकंड में मुकम्मल होता है, खाली आपके ऊपर गन रखी है, आपसे उसकी बुनियाद पर जो है आपका मोबाइल, आपकी कीमती चीज़ें छीनी और ये जाओ वो जाओ, इस 60 सेकंड में चूँकि ये मुकम्मल होता है तो इसमें जो है ना वो यूँ समझ लीजिए कि जो डेंजर फैक्टर है वो कम है, जो ख़तरा है वो कम होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं वो आसानी से कर लेते हैं। और फिर वो क्रिमिनल्स भी जो दीगर क्राइम करते हैं, लेकिन अगर उनके क्राइम पे किसी वक्त जो है वो पुलिस ने कोई मूव शुरू की हुई है तो वो उस क्राइम को छोड़ के स्ट्रीट क्राइम की तरफ आ जाते हैं। तो कराची का आम शहरी इससे लुट रहा है। आज हम दिसंबर की 12 तारीख को बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस साल अब तक 100 से ज़ायद लोग इस शहर में मारे जा चुके हैं स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों। ये सिर्फ एक साल की फिगर्स हैं। अगर आप जो हैं पिछले 10 साल की फिगर्स की बात करें या 2001 से अब तक की 24 सालों की बात करें तो अरबों रुपए कराची के शहरियों से लूटे गए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के दौरान। और स्ट्रीट क्राइम में हम और आप सिर्फ ये बात करते हैं ना कि जनाब आपको मोबाइल छीन लिया गया, आपसे आपकी जो कीमती चीज़ें छीन ली गई। जो स्ट्रीट पे होने वाले क्राइम हैं उनमें दीगर क्राइम्स भी हैं, उनको भी ज़रा जहन में रखिए। लोग घर बैंक से जो है वो रकम लेकर निकलते हैं, लूट लिए जाते हैं। आपकी कीमती गाड़ी शहर की सड़क पर चोरी है छीन ली जाती है। शहर में आपकी बाइक्स जो हैं वो चोरी है छीन ली जाती है। मोबाइल ज़्यादा बाइक चली जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, खैर बाइक्स जो हैं वो कम है, स्ट्रीट क्राइम का फिगर जो है ज़्यादा है। हाँ, इसमें एक और इशू ये भी है कि रिपोर्टिंग कम है। लोग रिपोर्ट्स नहीं करते क्योंकि उनको जो है एक अजीब बिहेवियर का सामना करना पड़ता है जब वो थाने जब जाते हैं। तो इसकी वजह से लोग जो है कहते हैं यार मोबाइल गया, चलो यार ठीक है, सदका गया, बला टली, इस तरह का वो ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं और रिपोर्ट नहीं कराते। लेकिन अगर आप फिगर्स उठा के देखिए इसके बावजूद तो आपको नज़र आएगा कि जनाब इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। स्ट्रीट क्राइम उम्मीद है कुछ कम हो जाएगी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मुझे। अच्छा, क्योंकि नीयत नहीं है, क्योंकि नीयत नहीं है, यहीं आ रहा था, क्योंकि नीयत नहीं है। सेफ सिटी की आप बात कर रहे हैं, सेफ सिटी मंसूबे को 14 साल हो गए। 14 साल पहले बन जाना चाहिए था ये। 14 साल के बाद भी आप सेफ सिटी की बात करें, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे उम्मीद नहीं है। सेफ सिटी बना दीजिए और बिल्कुल उसकी असल रूह के मुताबिक, उस मंसूबे के मुताबिक बना दीजिए कि जिसमें जो है आपका जब भी अगर कोई क्रिमिनल होगा, अगर कोई क्रिमिनल आपसे मोबाइल छीनता है, गाड़ी छीनता है, किसी और क्राइम करता है, उसका चेहरा फौरी तौर पर नादरा के सिस्टम के तहत जो है वो उसी वक्त बता देगा कि ये कौन शख्स है, ये कहाँ रहता है, इसके क्या वेयर अबाउट्स हैं। इसी तरह से कोई गाड़ी अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होती है तो वो कैमरे ऐसे होंगे कि उनकी नंबर प्लेट पढ़ के एक्साइज से लिंक होगा रिकॉर्ड, वो सारा आपके सामने आ जाएगा कि ये गाड़ी किसकी है, किसके नाम पर है, कौन शख्स ये कहाँ रहता है। जब तक सेफ सिटी उसकी असल रूह के मुताबिक नहीं बनेगा, आप भूल जाएंगे शहर में स्ट्रीट क्राइम, इस शहर में गाड़ियों का चोरी और छीना जाना, इस शहर में दीगर वारदातें कम होंगी। यानी जो क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले हैं पहला ऑपरेशन उन पे करना पड़ेगा। सही है ना? तो क्योंकि वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बेचारा लुट रहा है, जो मर रहा है, निज़ाम उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, निज़ाम उसके साथ खड़ा हुआ जो लूट रहा है। तो जब तक निज़ाम उसके साथ नहीं खड़ा होगा कि जो लूट रहा है तो फिर मसला ऐसे ही रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए किताब की तरफ लगता है कि कम है और एक इनिशियल इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा ये है कि हम इनिशियली उनको किस तरफ माइल करते हैं। लेकिन अगर सही उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि एग्जीबिशन कर रही है, तो आपके सामने ये रश और टर्नआउट ये इस बात की वैलिडेशन है कि प्रॉपर ब्रांडिंग के थ्रू उनको वापस लाया जा सकता है और वो वापस आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। आँख रखता था खुली और तबीयत मौजूं, तजुर्बे दूसरे करते थे, संवरता मैं था। जिंदा रहना अजब हुनर है यकीन, जिंदा रहना हुनर अजब हुनर है यकीन, ये हुनर उम्र भर नहीं आता।